Pratmik exam final paper answer sheet. The first question is किन्हीं 5 प्रश्न के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए. The first question of it is क्या वह मेज है? Answer हाँ वह मेज है. Second one, हाथ में क्या है? Answer हाथ में कलम है. Third one, कमला कहाँ है? Answer कमला मैदान में है. तुम कौन है? Answer मैं लड़का हूँ. Next one is रवि और करीम कहाँ खेलता है? Answer रवि और करीम मैदान में खेलता है. कुत्ता क्या खाता है? Answer कुत्ता बात करता है. Next one, दिनेश कहाँ से कमला लाता है? Answer दिनेश बाजार से कमला लाता है. कमल लाता है. बाग में कौन है? Answer बाग में स्कूल के लड़के हैं. The ninth one is गाड़ी कहाँ से आती है? Answer गाड़ी बाजार से आती है. The 10th one and the last one is मैदान कहाँ है? The answer is मैदान स्कूल के पास है. And the next one is किन्हीं 4 ने अक्षरों में लिखिए. Write any 4 of the numbers. First one 4, 4. Second one 6, 6. Third one 8, 8. Fourth one 12, 12. Fifth one 16, 16. Sixth one 20, 20. Seventh one 21, 21. Eighth one 25 is 25. And next one is third question is किन्हीं 2 पद्य का प्रांतीय भाषा में लिखिए. The first one means this lines are taken from the poem Vandana. It was written by the poet Ram Naresh Tripathi. The substance, the poet says to remove the bad habits of finding fault on others and we should not be jealous on anyone and by mistakenly also. Oh God, please give us knowledge. The second one means these lines are taken from the poem Janta Unche Rahe Hamara. This poem is written by Shamla Gupta Prasad. It is a patriotic song. Substance, the poet says, let not our pride of our flag go down. We are ready to sacrifice our life to protect the dignity of nation. We are fulfilled to pledge by conquering the world. Let the flag fly high. The poet is ready to sacrifice everything to save the dignity of our country. And the next one, the third question means these lines are taken from poem Meeti Boli Bolo. Poet advises us to speak sweetly. Substance, the poet says whenever you speak, use soft and sweet words. If you do so, you will be respected by others. You will also be considered as a honest person. The poet says is that sweet spoken person is always considered as a respectful and a honest person. The fourth one is these lines are taken from the poem Meeti Boli Bolo. Poet advises to speak sweetly. Substance, the poet says speak sweetly is a great quality. A value of spoken words is precious. So whenever you open your mouth, always use only lovable words. The poet advises us to speak sweet words while speaking. And the next one is meaning. Substance, the poet says how beautiful are the feathers of the peacock. Look at the multicolored feathers. The colors are designed in various patterns. Look at its dance of the peacock. The poet describes the peacock beauty and dance. And the next question is किसी एक दोहे में एक रूप जन के ता लिखिए. Write any one dohe. It is memory poem. The first one is सुधा ऐसी चाहिए जैसी सूप सुबह. ऐ सार सार है ए गड़ी रहे तोते ये दाई उजाड़.
The second one is धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होय माली सींचे साउगड़ा ऋतु आये फल होय. This both were written by Kabirdas. And the next one is तरवर फल नहीं कात हैं ए तरवर बही ने पान कही रहीम पर काज हैं ए संपत्ति सच ई सुजात. And the next one is किन्हीं तीन का अर्थ प्रांतीय भाषा में लिखिए. The first one is अनाज grain. The second one is मकान building. The third one is दाहिनी our right side. And the fourth one is Chantan rock. The fifth one is Videsh foreign country. And the sixth one is Sharir body. And the last one is Pratidin. It is daily. Let's go to the next page. Now coming to the second page, the first question is किन्हीं तीन के विलोम शब्द लिखिए. The first one is गाँव, answer शहर. Second one देना, answer लेना. Third one बाग, answer पहले. Fourth one कई, answer कुछ. Fifth one सूर्योदय, answer सूर्यास्त. Sixth one दिन, answer रात. Next one उपयोग, answer अनुपयोग. And the next one is चुस्ती and the answer is सुस्ती. And next one is किन्हीं चार वाक्यों को सही या गलत लिखिए. The first one is किसान खेत में जाता है. It is सही, true. Second one मकान बनाने वाले को जुलाहे कहते हैं. It is false, गलत. Next one is आभूषण बनाने वाले को वो बधाई कहते हैं. The answer गलत. And the next one is महेश का घर नया है. It is true, so it is सही. Last one is महेश का घर में 4 कमरे हैं. It is false, so it is गलत. And the next one is किन्हीं 4 के कोष्ठ के सही शब्द चुनकर खाली जगह भरिए. It is fill in the blanks with the correct option. First one रोज बड़े शाम को और सवेरे उठाए. The answer is सवेरे. And the next one is dash पानी ने स्थान करिए चाहिए. First one गंदगी, second one साफ. It's साफ. And the next one is दांत साफ रखने से मुँह से बदबू नहीं आएंगे. The answer is मुँह. And the next one is रोज कपड़े लेने डैश हैं. अच्छा बुरा. Answer अच्छा. The next one is शुद्ध शरीर में डैश मन रखता है. अशुद्ध शुद्ध. Answer is शुद्ध. And coming to the next one, it is निम्नलिखित वाक्यों में जोड़िए. The first one is गंदगी से. It matches to the second one इस प्रकार की बीमारी फैलती है. And the next one is शरीर को साफ रखने के लिए रोज नहाना चाहिए. And the next one is उत्तर में हिमालय पहाड़ है. The last one is शुद्ध तन में. The answer goes to the first one. It is शुद्ध मन रखता है. And the 10th question किन्हीं 4 को काली जगह भरिए. First one मेरी परिवार में सब लोग कुशल हैं. And the next one तुम इस महीने मदुरै आएंगे. And third one मंदिर के वास्तुकला देखकर तुम बड़ा आश्चर्य होगा. And the next one is मंदिर के आसपास मन बहला के स्थान है. And the last one is वह डैश देश है. वह गरीब देश है. And the next one is
फ्रेम सेंटेंसेस दैट स्किनहेड 4 शब्द के प्रयोग वाक्य में कीजिए। फर्स्ट वन, परिवार। राहु के परिवार में 4 लोग हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज विश्वास। द आंसर फॉर इट इज हमको ज्ञान पर पूरी विश्वास है। एंड द नेक्स्ट वन इज प्रसिद्ध। एंड द आंसर फॉर दैट वन इज it is रामानुजन दिया के प्रसिद्ध दिन है। एंड द नेक्स्ट वन इज वास्तुकर। द आंसर फॉर इट इज मकान बनाने वाले की कला को वास्तुकला कहता है। एंड द नेक्स्ट वन इज द्वारा। And the sentence for द्वारा is परिश्रम के द्वारा हम उन्नति पा सकता है। And the next one is चिंतित। The answer for चिंतित is रखते परिश्रम से ये चिंतित है। And the next one after चिंतित is प्रबत करना। The word for प्रबत करना, sentence for प्रबत करना है हम अगस्त 15 को स्कूल में सप्तऋ दिवस का प्रबत करता है। एंड द नेक्स्ट वन इज पाप। द सेंटेंस फॉर इट इज अस्पृश्यता मनपात के प्रतिबद्ध पाप है। एंड नेक्स्ट वन इज किन्हीं 4 प्रश्न के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। द फर्स्ट वन इज किसान कहाँ रहता है? द आंसर किसान गांव में रहता है। द नेक्स्ट वन इज जुलाहे क्या बुनता है? द आंसर इज जुलाहे कपड़ा बुनता है। एंड द नेक्स्ट वन इज महेश का घर में कितने कमरे हैं? द आंसर महेश के घर में 4 कमरे हैं। एंड द फोर्थ वन इज क्यारियों में किसी फूल लगी हैं। क्यारियों रंग बिरंगी फूल लगी हैं। द फिफ्थ वन इज नारियल का पेड़ कैसा होता है? नारियल का पेड़, आंसर नारियल का पेड़ ऊंचा होता है। एंड द सिक्स्थ वन इज कन्याकुमारी कहाँ है? द आंसर इज कन्याकुमारी भारत का दक्षिण छोर पर है। एंड द सेवंथ वन इज कन्याकुमारी के केंद्रीय शब्द के चंद्रन होता है। एंड द आंसर फॉर दैट वन इस कन्याकुमारी में 3 समुद्र के संगम होता है। एंड देन लास्ट वन ऑफ इट इज समुद्र पर क्या मंदिर है? एंड द आंसर फॉर दैट वन इज समुद्र पर देवी कन्याकुमारी का मंदिर है। किन्हीं 2 प्रश्न के उत्तर 3-3 वाक्य में लिखिए। फर्स्ट वन इज मोहन ने किसकी पत्र लिखा और क्या लिखा? एंड आंसर फॉर इट इज मोहन ने आपके दोस्त कुमार के पत्र लिखा। वह लिखा तुम छुट्टी पर मदुरई आएंगे। आपने माँ बाप और छोटी भाई को भी साथ ले आएंगे। एंड द नेक्स्ट वन इज मदुरई के बारे में 3 वाक्य लिखिए। एंड द आंसर फॉर इट इज मदुरई पुराना और सुंदर देश है। वह मीनाक्षी अम्मन का मंदिर, तिरुमले नायकर महल, गांधी म्यूजियम आदि स्थान प्रसिद्ध स्थान है। यह महला के स्थान भी है। गांधी जी के बारे द थर्ड वन इज गांधी जी के बारे में ये 3 वाक्य लिखिए। द आंसर इज महात्मा गांधी जी भारत के राष्ट्रपिता हैं। उन्होंने हम सत्याग्रह द्वारा आज़ादी दिलाई। वह देश के गरीबों की हटाना चाहते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज गांधी जी ने क्या देखा और क्या पूछा? गांधी जी ने ये देखा कि उसने सामने घी के
जल रहे हैं। उन्होंने वह बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उन्होंने पूछा कि घी का यह दिया किसे जलाया। एंड नेक्स्ट पेज इज द 14th क्वेश्चन इज किन्हीं 5 वाक्यों में अनुवाद प्रांतीय भाषा में कीजिए। द फर्स्ट वन इज तुम किताब लाओ, यू ब्रिंग द बुक। एंड द नेक्स्ट वन इज वेलू घर जाता है, वेलू गोज टू द हाउस। द नेक्स्ट वन इज लड़का मैदान में खेलता है, बॉयज प्ले इन द प्लेग्राउंड। राम पढ़ रहा है, राम इज रीडिंग। नेक्स्ट वन इज सीता आज तुम क्या सोच रही हैं। आंसर सीता व्हाट आर यू थिंकिंग। एंड द नेक्स्ट वन इज मैं कल आर्ट लेंगा, I shall write the lesson tomorrow. Next one is Gopal आया, गोपाल के वह स्टेट गया, वे स्टेशन गया, we went to the station. And the next one is किन्हीं 5 वाक्यों को अनुवाद हिंदी में कीजिए। You should write it into Hindi. First one is don't go here there, उधर वहाँ मत जाओ। Next one is bath daily, रोज नहाना। Next one is where does he goes, वह कहाँ जाता है। And the next one the lady sells fruit, वह औरत फल बेचते हैं। And the next one is the tailor stitches cloths, दाढ़ी कपड़ा की रहा है। And the next one is we shall not come tomorrow. The answer is वह कल नहीं आएंगे। And let's go to the next question. That is किसी एक कहानी का straight लिखिए। Actually it's short story. There are 5 of them. You should learn one. There are 5 of them in total. Here they gave 4 of them. You should be thorough with the first and the second one. Sometimes they will ask 1, 3, 5, or they will ask 2, 4, 6. And I'm saying the first one, कवि और कंजूस। कहानी एक गांव में गोवर्धन नामक एक गरीब कवि उसके परिवार के साथ रहता था। वे एक दिन वह महेंद्र नामक धनवान के घर पहुंचा। महेंद्र बहुत कंजूस था। कवि गोवर्धन ने उस पर झूठी प्रश्न की एक कविता सुनाई। इस सुनकर महेंद्र ने अपने नौकर से गोवर्धन के लिए सोने के ताली और ऐश्वर्या से आने से कहा, मगर नौकर नहीं आया। गोवर्धन ने पूछा, फिर महेंद्र ने कहा कि अपने मुझे खुश कर लिए झूठी प्रश्न की, इसकी तरह आपने खुश करने के लिए मैं भी झूठी बोला। गोवर्धन ने काली हाथ में लौटने पड़ा। सीख कंजूस कैसी डंडी नहीं देते। एंड द सेकंड वन इज बूढ़ी शिकारी कुत्ता। एक शिकारी के यहाँ एक बूढ़ी शिकारी कुत्ता था। वह कई वर्ष तक शिकारें पाने के काम बदबू करता था। एक दिन शिकारी साथ बूढ़ा कुत्ता शिकार पर गया। तब एक हिरन के पीछे करके उसने उस पकड़ने के लिए हिरन पर उसके दांत दसा दिया, मगर उसके दांत टूट गया और हिरन भाग गया। शिकारी ने कुत्ता ने क्रोध आया। उन्होंने उसको मगर के लिए बंदूक उठाया। बूढ़ा कुत्ता कातर
निहांगे के मालिक ने इस प्रकार का रहा था कि मुझे मत मारो, मेरी शरीर अब कमजोर हो गई है, मेरे जीवन के दिन याद करो। मालिक ने उसके मुख बात समझे गया और फिर उसके प्यार करने लगा। सीख, बुढ़ापे से कोई बच नहीं सकता। And this is the end of the paper. And if you like our video, please subscribe to our channel. Bye.